Jai Hind student, welcome to English class. Now students, today we will study about the clauses and its type. Now before starting the clause, what is clause and what are the different types of the clauses? First, it is very important to understand the difference between phrase, clause and sentences. Because these three terms, they have resemblance, so it is very important कि you should differentiate कि what is clause, what is phrase and what is sentence. Now first let's talk about the sentence. Okay, sentence you all are familiar. ओके, सेंटेंस क्या होते हैं? इट इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं मीनिंगफुल विच इज़ कन्वेइंग सम मीनिंग, दे ऑल आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस. दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. एंड दीज सेंटेंसेस दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. ठीक है, कंप्लीट पूरा थॉट हमको मीन्स अगर हम सेंटेंस कोई भी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है उन वर्ड्स को कि व्हाट दैट सेंटेंस इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस. ओके, थर्ड थिंग इज दैट इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस, okay, every sentence has two basic parts. Okay, that is subject and predicate, that you all are familiar. Now, it consists of a verb. Okay, that is the very important. It consists of a verb and the complement which comes after the verb and with subject of the sentence. Unlike the clause always give complete sentence, this is called sentence. Now, let's see the example. Okay, now first thing, it consists of a finite verb. Okay, now यहाँ finite verb से मतलब क्या? The verb which means you will by seeing the sentence you will come to know the tense, the number also. Okay, whether it is singular, plural. So that is the finite verb. Okay, so these are the things which sentence contain. Let's see the example. I will meet him in the office. Now here let's see whatever we have discussed, whether this sentence has all the things or not. If it contains everything, then it's a sentence. For example, I will meet him in the office. So here I is the subject here, okay, about which we are talking, and will meet him in the office is the predicate here. Okay, then it is showing tense also here, that you can see the future tense and you can see the number also ki I is denoting a singular. Okay, so that is the sentence. So hope you have understood the sentence. Now clause and sentence, they are quite similar. काफ़ी कुछ ही लोग मिलते जुलते हैं दोनों ही, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. ओके, हम ये कह सकते हैं इन जनरल टर्म या ब्रॉड सेंस में आप ये बोल सकते हो हर सेंटेंस में क्लॉज होगा. ठीक है, सेंटेंस जो हैं वो क्लॉज हो सकते हैं, पर जो क्लॉज होंगे वो सेंटेंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं. now let's see understand ki how. Now clause is also a meaningful group of words. ये भी जो है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन सेंटेंस. सेकेंड थिंग, it also has a subject and the predicate. It has a finite verb also. So all the things are quite similar to the sentence. Then where is the difference lies? कहाँ difference है? There is a difference because the clause, it may or may not be dependent on something else फॉर कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, हमने सेंटेंस में क्या बात की थी कि सेंटेंस जो हैं वो पूरी तरह एक कंप्लीट थॉट रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ग्रुप मीनिंगफुल वर्ड्स तो क्लॉज भी हैं बट दे रिप्रेजेंट कंप्लीट थॉट, मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. बट क्लॉज की अगर हम बात करें, क्लॉज डिपेंड भी हो सकता है ऑन समथिंग और इट मे एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग. अगर ये क्लॉज कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है देन इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ सेंटेंस. ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया अ सेंटेंस कैन बी ए क्लॉज बट अ क्लॉज मे बी अ सेंटेंस और मे नॉट बी अ सेंटेंस. ओके, तो अगर जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है, मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. बट द सेम थिंग, वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि क्लॉज जो है इट मे नॉट रिप्रेजेंट द कंप्लीट मीनिंग, इट मे बी डिपेंडेंट ऑन द सम अदर वर्ड्स ऑल्सो. ओके, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट मीनिंग, तो उस केस में भी वो क्लॉज होगा बट वो सेंटेंस नहीं होगा. तो इसका मतलब क्लॉज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जब वो कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है
तो उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और जब वो किसी पे डिपेंड है तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्लॉज के काइंड्स। अभी हम यहाँ पे डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। So a clause may stand as a simple sentence or may join another clause to make a sentence. Okay, it may represent a sentence or it may depend on other words. That is also a type of clause only to make a sentence. As like sentence, a clause also contains subject and predicate. If it gives complete sense, we can call it a sentence. But if does not give complete sense on that time, it is called a clause. Remember, a sentence always can be a clause, but a clause always cannot be a sentence. So this what I have discussed just now. For example, we'll be taking the same sentence. I will meet him in the office. Okay, I is the subject here, you can see. Will meet him in the office is the predicate or the subject of the complaint. And with the subject, इट इज़ गिविंग द कंप्लीट सेंस। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो सेंटेंस है इट इज़ अ सेंटेंस ऑल्सो एंड एज वेल एज क्लॉज ऑल्सो। ओके, बिकॉज इट इज़ डिपिक्टिंग द कंप्लीट मीनिंग। नाउ नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। ओके, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है। और अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस की बात करें, इस सेंटेंस के एक पार्ट की, दैट इज़ अ टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, सो दिस इज़ अ कंप्लीट, इट इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, इट इज़ स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा या प्रिंसिपल क्लॉज। बट अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, बट नो वन आंसर्ड, नाउ बट नो वन आंसर्ड जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ सेकेंड क्लॉज। इसमें भी जो है सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कुछ चाहिए। बट नो वन आंसर्ड, ये इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कोई सेंटेंस नहीं है। इसको ये किस पे डिपेंडेंट है, वो इस पार्ट पे डिपेंडेंट है। ये जो बट नो वन आंसर्ड किस पे डिपेंडेंट है, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। सो ये कौन सा हो जाएगा, बट नो वन आंसर्ड हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, मेन क्लॉज पे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट it does not make a complete sense by itself. Second thing, it has no subject and no predicate, and it has no finite verb. So phrase is totally different from clause and sentence. They are also the group of words, but they do not show any meaning. They do not contain subject and predicate, and they have no finite verb. उनमें कुछ भी नहीं होता है। Example, I will meet him in the office. Now here in the office is a phrase. Now if you say in the office, ठीक है, तो इन द ऑफिस मीन्स इट इज़ नॉट शोइंग द कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं पता चल रही है, इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर, मतलब हमें समझ में आ रहा है, बट इट इज़ नॉट शोइंग द कंप्लीट मीनिंग। ना इसमें सब्जेक्ट है, ना प्रेडिकेट है, ना ही वर्ब है, एज यू कैन सी। सो ये जो भी ब्लू से हाईलाइटेड है, दीज ऑल आर फ्रेज। ही इज़ लाफिंग एट द जोकर, यू मस्ट कम ऑन टाइम। सो एट द जोकर, ऑन टाइम, ये सब क्या है, फ्रेजेज हैं। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ द टीचर बट आई टोल्ड यू दैट आई टोल्ड यू अबाउट लास्ट वीक। ओके, सो हेयर ही इज़ द टीचर दैट आई टोल्ड यू अबाउट लास्ट वीक, ये एक सेंटेंस है। अगर क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ द टीचर इज़ ऑल्सो अ क्लॉज, दैट आई टोल्ड यू अबाउट लास्ट वीक इज़ ऑल्सो अ क्लॉज। ये मेन क्लॉज है एंड ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, और फ्रेज की बात करें तो द टीचर इज़ अ फ्रेज, अबाउट लास्ट वीक इज़ अ फ्रेज है। तो इसमें आप देख रहे हो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो है उसमें क्लॉज भी होंगे, उसमें फ्रेजेस भी होंगे, दैट यू हैव कम टू नो। ओके, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया। सो दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन how to differentiate. Now I hope you all have understood. Now next lecture में अब हम अपना main topic लेंगे and we'll be discussing about the kinds of clauses. So thank you everybody.